function is given and you have to find when it is decreasing and when it is increasing. Okay, the interval of monotonicity. Okay, so first function is 2x plus cot inverse x plus ln of under root of 1 plus x square minus x. So first check the domain of the function. Okay, this function is always defined, cot inverse x is always defined. Okay, but ln के अंदर जो quantity आ रहा है that should be positive. Okay, तो under root of 1 plus x square minus x should be greater than 0. And for any x, under root of 1 plus x square is always greater than x. Because this expression magnitude wise always greater than x. So for any value of x, this expression is always positive. You can put x either negative or positive. So this expression is always positive. This is solution x belongs to R. So finally the domain of the function is x belongs to R. This function is always defined. Okay. And now find the derivative. F dash x is 2 plus cot inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 upon अंडर रूट के अंदर 1 plus x स्क्वायर माइनस x. तो ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 upon समथिंग. अब फिर चेन रूल से इसका करेंगे तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 plus x स्क्वायर का 1 upon 2 root 1 plus x स्क्वायर. ओके, और इनटू इसका 2x होगा, फिर x स्क्वायर का फिर से करेंगे और माइनस x से कितना होगा -1. ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 2 minus 1 plus x square. Okay, and this is 1 upon under root of 1 plus x square minus x, and this will come out x minus under root of 1 plus x square upon under root of 1 plus x square. Okay, so this will cancel out but with minus sign, because this is a minus b, this is b minus a. So finally 2 minus 1 upon 1 plus x square माइनस साइन के साथ आएगा, तो फिर माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. तो फाइनली जो डेरिवेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है. ओके, अब दिस एक्सप्रेशन व्हेन इट इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज नेगेटिव. ओके, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर is always greater than equals to 1. Under root of 1 plus x square is always greater than equals to 1. So 1 plus x square greater than equals to 1. Under root of 1 plus x square is always greater than equals to 1. So this quantity, denominator is greater than numerator. So this quantity is less than equals to 1. This quantity always less than equals to 1 because denominator is greater than numerator. At x is equal to 0, this is equal to 1. At x is equal to 0, this is equal to 1. ओके, इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करेगा इसका 0 पर भी, इसका भी 0 पर. तो फाइनली जो f dash x आ रहा है वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि 2 माइनस माइनस. ओके, तो फाइनली ये क्या है f dash x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तब जाके ये 0 होगा, अदरवाइज तो ये पॉजिटिव ही आएगा. तो फाइनली जो फंक्शन है वो is increasing in minus infinity to infinity. Function is always increasing. Okay. So gx function is given, and in terms of f, and f double derivative is negative in 0 to 1. So finally you have to discuss, you have to find where it is increasing, where it is decreasing. gx function. ओके, gx की मोनोटोनिसिटी बता रहा है. मोनोटोनिसिटी मींस कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो फिर तो इसके डेरिवेटिव से ही पता चलेगा. g की मोनोटोनिसिटी तो g के डेरिवेटिव से ही पता चलेगा. तो g dash x is what 2f dash x by 2 into 1 by 2 and minus of f dash 1 minus x. So this is finally f dash x by 2 minus f dash 1 minus x. ये g का डेरिवेटिव आ. ओके, तो फॉर इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग जी कब इंक्रीजिंग है तो उसके लिए जी डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए.
हम ये देख रहे हैं कि जी कब इंक्रीजिंग है, तो जी का डेरिवेटिव पॉजिटिव करो यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स बाई टू माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का हो जाएगा, इंक्रीजिंग इंटरवल में आ जाएगा। ओके, तो फाइनली फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स बाई टू शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश वन माइनस एक्स। ये अब एफ का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दे रखा है मुझे, तो एफ का डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है मीन्स ये किसका डेरिवेटिव है, ये तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स है जो कि नेगेटिव है। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश अगर मैं बोथ साइड से यहां अगर रिमूव करेंगे तो एक्स बाई टू इज लेस देन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश जो है वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए जब भी एक्स बाई टू क्या होगा वन माइनस एक्स से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर एफ इंक्रीजिंग होता, अगर एफ डैश इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ओके, तो फाइनली दिस इज एक्स इज 2 माइनस 2x, एक्स इज कमिंग 3/2 लेस देन 3/2। बट ये जो भी डिस्कशन हो रहा है ये विद इन 0 to 1 हो रहा है ना, 0 से पीछे की बात नहीं हो रही है, 0 से 1 के बीच में। तो 3/2 से 1 मिनट 2/3 आएगा। तो फाइनली जो फंक्शन है जी एक्स वो इंक्रीजिंग कब आ रहा है, विद इन 0 से 2। वी आर डिस्कसिंग इन 0 to 1। और फॉर डिक्रीजिंग जी डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 मींस एफ डैश एक्स बाई टू लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश वन माइनस एक्स। ओके, अब अगेन एफ डैश तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक्स बाई टू ग्रेटर देन ऑफ वन माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2x, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो फॉर डिक्रीजिंग x belongs to 2/3 to 1। तो gx जो फंक्शन है इस इंटरवल में तो डिक्रीज कर जाएगा और इस इंटरवल में इंक्रीज कर जाएगा। ओके ओके, a function phi x is f of x का क्यूब माइनस 3fx स्क्वायर प्लस 4fx प्लस 5x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। This function is for all x belongs to R, and fx function is always differentiable, it is given in the questions। And finally you have to find the monotonicity of phi x in terms of monotonicity of fx। Options are like if fx is increasing then phi x in increasing, if fx is decreasing then phi x is in decreasing। तो options कुछ इस तरीके से है ना। तो चलो पहले इसकी फाई डैश एक्स के बारे में बात करते हैं, मतलब मैं फाई की मोनोटोनिसिटी के बारे में कैसे बता सकता हूँ, उसको डेरिवेटिव बताइए। तो फाइनली इसका जो डेरिवेटिव है वो 3fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स और माइनस के 6fx एफ डैश एक्स प्लस 4 एफ डैश एक्स प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x। ओके, ये डेरिवेटिव है। तो देखो इन सारे टर्म में से तो एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है फिर 3fx का स्क्वायर माइनस 6fx प्लस 4 एंड दिस इज प्लस 5 प्लस 3 cos x माइनस के 4 sin x। ओके, this is 3, this is 6, this is 4, so you can write as 3 plus 1। okay, यहाँ से 3 कॉमन लो तो 3 एफ डैश एक्स, एक इसको एफ डैश एक्स ही रहने दो, यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद ये देखो एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2fx प्लस 1, तो ये fx माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा कुछ ऐसे, है ना, और प्लस 1 और प्लस 5 ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x। ओके, दिस इज 5 डैश x। अब इस 5 डैश x के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें कि दिस इज वेयर इट इज पॉजिटिव, वेयर इट इज नेगेटिव, है
ना। तो इसकी जो साइन है फाइव डेस एक्स का जो साइन है वो इन सारी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो इस टाइप के फंक्शन को देखते ही समझ में आ गया कि a sin x प्लस b cos x टाइप का जो भी फंक्शन होगा उसका मैक्सिमम मिनिमम तो हम बता सकते हैं। तो जो 3 cos x माइनस 4 sin x है ये -5 से 5 वेरी करेगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से लेके अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस तक। तो ये तो जाएगा -5 से 5, इसमें 5 ऐड कर दो तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ओके सॉरी ये -5 से 5 जा रहा था ना पहले, ये कितना जा रहा था -5 से 5, तो 5 ऐड करने पर ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 और ये 5 मैंने ऐड किया था। तो फाइनली ये जो क्वांटिटी है ये तो 0 से 10 वेरी कर रहा है। ये जो क्वांटिटी है लास्ट में जो लिखा हुआ है 5 प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x, ये तो 0 से 10 वेरी कर रहा है। ओके, तो 0 से 10 वेरी कर रहा है, ये तो नॉन नेगेटिव हो गया लास्ट के जो 3 टर्म है। ओके, ये बात। और ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है मुझे, fx माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इफ आई से f डैश x इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अगर मैं कंसीडर कर लूं तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये तो नॉन नेगेटिव है। तो यहां से श्योर है कि इफ fx इज इंक्रीजिंग देन phi x इज इंक्रीजिंग। ये श्योर है, क्योंकि fx अगर इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x पॉजिटिव होगा, तो phi डैश x भी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है phi इज इंक्रीजिंग व्हेनेवर f इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल ओके, जब भी f इंक्रीजिंग होगा तो phi भी इंक्रीजिंग होगा। बट अगर f डैश x सपोज की नेगेटिव है, ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है और ये कुछ पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। अगर मैं कहूं कि f डैश x नेगेटिव है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगा और ये नॉन नेगेटिव है। तो अब इनका जो समीशन है वो तो कहा जाएगा, ये तो नहीं बता सकते भाई। ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो उसका सम तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे। बट fx अगर इंक्रीजिंग है मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव, तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि अगर fx इंक्रीजिंग है तो phi x भी इंक्रीजिंग होगा। बट डिक्रीजिंग वाले में ऐसा नहीं बोल पा रहे। ओके, तो ये ऑप्शन तो होगा सही। लेकिन उसने एक ऑप्शन में ये दे रखा है कि phi is decreasing if f dash x is 11. Phi is decreasing if f dash x is minus 11. ये दे रखा है ना। तो चलो देखते हैं। तो अगर इस डेरिवेटिव का वैल्यू -11 है और इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है, देखो 3 टाइम्स ऑफ fx माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 है। ये 1 से ग्रेटर ही होगा हमेशा, है ना। वो भी fx का वैल्यू जब 1 होगा तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है f डैश x के अंदर, इसका मिनिमम वैल्यू 1 है और ये -11 है। तो इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका जो वैल्यू है वो -11 हो गया नेगेटिव। अगर मैं इसका 1 वैल्यू ले लूं तो, है ना, f डैश x 11 है और इसका मिनिमम वैल्यू अगर ले लूं 1 तो ये हो गया -11। और ये क्वांटिटी तो 0 से 10 है, ये क्वांटिटी तो 0 से 10 है। तो फाइनली ये तो नेगेटिव ही आ रहा है ना, -11। अगर मैंने इसका वैल्यू 1 लिया है तो -11 प्लस 0 से 10 की कोई क्वांटिटी तो ये नेगेटिव ही आएगा। इट मींस ये डिक्रीजिंग हो गया इस पॉइंट पर। बट अगर सपोज कि fx का वैल्यू इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गया तो 1 से ग्रेटर हो गया, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, तो ये तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया। -11 से -22 -33 मतलब -11 से ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये 1 से ग्रेटर हो गया तो फाइनली उस केस में तो नेगेटिव डेफिनेटली आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है कि इफ f डैश x इज इक्वल टू -11 देन phi डैश x इज डेफिनेटली नेगेटिव। ओके, तो इस केस में phi डैश x नेगेटिव हो जाएगा तो phi x डिक्रीजिंग। तो अगर f डैश x का वैल्यू -11 है तो फिर phi x जो है वो फंक्शन वो डिक्रीजिंग होगा। ये भी स्टेटमेंट सही।